Hello guys, welcome to my channel. I will be starting from CMAT 2026 and every section will be individually provided with the solution. Okay, so this is for CMAT 2026 quant section, that is math part, and I will be providing you through the solutions. So let's get started. So what does the question says? क्वेश्चन क्या बता रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय द डीलर Q that is in April plus May and June is what percentage of the total cars sold by all the dealer, that is by all the dealer in February plus April. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find Q, April, May and June. So here it is Q, here comes April, May and June. Simply you can just calculate it all, that is 97 plus 102 plus 108, it would be 307. And secondly all of Feb and April. Okay, so where is Feb? That is, this is all of Feb 400 and April is over here, so this is 800. Okay, and your solution comes out to be, आपका solution ये रहा. It would be approximately comes out to be 38 3 by 8. Okay, so here is the answer. It was relatively easy. I mean the whole chart section, that was completely easy part, baby part. ठीक है, let's get ahead to the second question. What does the second question says? चालू करते हैं. second question, it tells us that the total number of car dealer P during February, that is P का February to June. We have to go to the P section from Feb to June, that is February, March, April, May and June. ठीक है, 94, 108, 85. Am I right? Am I doing right now? Okay. So okay, February to June. And to what percentage car more than the total car? Here the word more is used than the total car sold by all the dealers. ठीक है, all the dealer and word more is used. So we have to mark the difference. हमें difference लेना होगा, तभी हम ये more का जो specifically दिया गया है वो हम fulfill कर पाएंगे. ठीक है, चलिए let's get to the solution part. We are given 94, 85, 108, 98, 95 and approximately, that is 94, 85, 108, 98 and 95. ठीक है, this would relevantly comes out to be 480 if I am not wrong, and all sold in June का all. ठीक है, 396. so how much more it is? 396. what कितना आएगा? 4 and 80, so it would be approximately 84 of 480 if I am not wrong. 84 of 480 into 100. Okay, I made a little mistake over here. यहाँ पे 396 आना चाहिए था. Sorry for my mistake. And the answer would be approximately, if you count it out, that is 84 divided by 396. So approximately 21.21 will be your answer. ठीक है, here it is. Let's get back to the second question. Here comes this third question. Sorry. ठीक है, so चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं. पहले क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर पी. वी हैव टू गो टू द डीलर पी in February, April and May. Here it is February, April
and here it is May. ठीक है, that is P in February, April and May comes out to be this, and approximately it would be around 300. ठीक है, and what we are given to the total number of car sold by dealer S. So here it is S in March, May and June. ठीक है, March, skip one, that is May, and over here it is June. तो यहाँ पे आएगा S का 90 प्लस 89 प्लस 91. ठीक है, 01, and you will count out it to be 270. So रेशियो ही लेना था P of S का, तो here it would be 300 upon 270. ठीक है, आंसर would be 10/9. अगेन वेरी इजी, सारे के सारे सेट्स ऑफ table chart, that is it was extremely easy, and 12 marks over here can be precisely and accurately be contained. चलिए आगे बढ़ते हैं. In triangle ABCD in the above figure, sorry, let me just draw the figure ABC and ADC, the figure. Okay, I forget to draw the figure, but it was the figure, I have drawn it. तो व्हाट डज द क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, दैट इज इन दिस फिगर, also DC is 2 unit, and AC, that is this part is 4 and this smaller part is 2. If you know the dancing rule, that is no, अगर आप AB square लेंगे तो what does it say, that BC into BD will be the answer. ठीक है, so this is like the dancing rule is this. मैं बस याद करने के लिए इसे डांसिंग रूल बोलता हूँ. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन AC को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू BC. ठीक है, व्हाट इज AC, AC इज 4 square, and DC we are given 2, we have to find BC. Also in the question we have to find BC, that's why I have taken this side. ठीक है, so 16 is equals to 2 into BC, therefore BC comes out to be 8 units. This is your answer. Let's get to the second part. मिक्सचर एंड एलिगेशंस का क्वेश्चन है. 85 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर. ठीक है, इट इज 85, द टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया है 85 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो. अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का सिंपल सा अगर रेशियो दिया है तो वी कैन ब्रेक डाउन इनटू द होल थिंग, मतलब ये कितना है और ये बाकी का कितना है, वी कैन कैलकुलेट. How much more water is required to be added in the mixture so that the resulting mixture contain milk and water. Okay, मतलब यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज़ दी गई है कि what is the amount of water, हमें सिर्फ water ऐड करना है. ठीक है, तो एक चीज़ इसके अंदर कांस्टेंट रहेगी जो है मिल्क. सो हम मिल्क का पार्ट देखते हैं पहले. मिल्क का पार्ट सेज दैट 85 इंटू 27 अपॉन 34. How does the 34 come? 34 comes out to be 27 plus 7, मतलब ये जो रेशियो दिया है, ये जो रेशियो है उसका हमने फुल पोर्शन कम नीचे रखा ताकि वी कुड गेट दी रेशियोज. सो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 135/2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, और यहाँ से हमें 67.5 मिला. ठीक है, व्हाट अबाउट वाटर, तो वाटर का भी चेक कर लें. वाटर का जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा इसको दो तरह से कर सकते हैं. 85 में से ये माइनस कर दो, और एल्स आप क्या कर सकते हो, ये जो 85 है ना, जस्ट ब्रेक इट डाउन टू द रिमेनिंग पार्ट. हमारे पास 27 यहाँ पे था, नाउ द रिमेनिंग इज 7 गिवन इन द क्वेश्चन. सो ये 7 था अपॉन 34. ठीक है,
तो यहाँ से हमारा जो बनेगा आंसर वो बोथ विल बी सेम, ठीक है, 17.5 एंड 17 पॉइंट बोथ, ये दोनों रेशियोज सेम ही आएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गिवन, एक मिनट थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, ओके। सो हमें ढूंढना है 3:1। व्हाट इज 3? 3 इज ऑफ मिल्क, हमें मिल्क ऊपर रखा है और मैंने नीचे लिया है ये। नाउ अब हमें पता है कि हमने सिर्फ वाटर ऐड किया है, तो हियर इट इज वाटर, ये हमारा वाटर है, दिस इज आवर वाटर, हमने वाटर ही ऐड किया है, तो दिस पार्ट दैट इज मिल्क पार्ट विल रिमेन द सेम। नाउ हमने मिल्क पार्ट ऑलरेडी ढूंढ लिया है ओवर हियर, दिस इज योर मिल्क पार्ट, तो मैं मिल्क पार्ट सीधा रख सकता हूँ 67.5, और नीचे हमने सिर्फ वाटर ऐड किया है 17.5 प्लस x। बाय सॉल्विंग दिस it is relatively simple, that is 17.5 plus x whole into 3 is equals to 67.5. After you simplify it, you will get the answer x to be 5 liters, ठीक है। So here is your answer. Let's get ahead. We are on the 6th questions. So what does the 6th question tells us? ठीक है, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द रिजल्टिंग नंबर ऑफ द एक्सप्रेशन, दैट इज दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, हियर इज द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन का हमने यूनिट डिजिट ढूंढना है, यूनिट प्लेस। अगर आपको पता है दैट यूनिट प्लेस ढूंढना हो, व्हाट इज दैट इज दिस इक्वेशन के अंदर हमारा आखिरी कौन सा है, एंड थोड़ा सा साइक्लिसिटी यूज होगा, इट इज इजी। मतलब इफ यू आर आस्क्ड इन एनी एग्जाम द यूनिट प्लेस ना, आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए, इट इज दैट। तो 4 का साइक्लिसिटी होता है 2, ठीक है। अब मैं मतलब जैसे कि आप 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, इसका 16 आएगा, एंड अगर इसके अंदर वापस से मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो इट वुड बी 64। नाउ साइक्लिसिटी अगर नहीं याद रह रही, यू कैन डू दिस अगेन एंड अगेन, आपको साइक्लिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। 4 आ रहा है अगेन, नाउ यू हैव टू डू द सेम, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, अगेन 16 आए, मतलब 6 आएगा यूनिट प्लेस। नाउ इट इज रिपीटिंग, मतलब on multiplying 4 again you will get this, either it would be 6 or either it would be 4। अब ये 6 कब आ रहा है और 4 कब आ रहा है, अब जब आप 4 ले रहे हैं तब यू आर इन द ऑड डिजिट, और यहाँ पे जब इवन है तब यू आर टेकिंग 2 4, मतलब इवन डिजिट रहेगा तब आपका 6 आंसर आ रहा होगा, एंड ऑड डिजिट रहेगा तो आपका 4 आ रहा होगा, ठीक है। नाउ हियर इट इज इवन नंबर, ठीक है, तो 4 का हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है। फ्रॉम हियर इवन नंबर है ऊपर, तो यहाँ पे 6 मिल गया, एंड हियर सॉरी आई हैव टेकन दिस एज रॉन्ग, 101 आएगा, 101, एंड नाउ दिस नंबर इज ऑड, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा आंसर जो बनेगा वो आएगा 4, मतलब इन दी एंड जो भी कैलकुलेशन होगा इट वुड बी द सम ऑफ दिस, मतलब ये आपके यूनिट डिजिट्स आ रहे हैं, तो यूनिट डिजिट कौन सा आएगा लास्ट में, 0, ठीक है। लेट्स गेट अहेड। now 4 coins are tossed simultaneously and you have to find the probability that 2 consecutive head occurs together। देखिए, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, जस्ट आपको सिंपल जो माइंड के अंदर आ रहा है उसे ऑन पेपर लिखिए, ठीक है। हमने 4 बार टॉस किया है, तो 1 2 3 एंड 4। नाउ लेट अस राइट ऑल द नेसेसरी आउटकम्स। अब हमें बोला क्या है, ऑफ टू नेवर ऑकर, ठीक है। तो नेवर ऑकर साइड बाय साइड,
मैं सिंपली 4 हैं तो मेरे टोटल आउटकम है वो तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ। टोटल आउटकम वुड बी 16। ठीक है, ये इजी पार्ट है। नाउ हाउ कम नेवर ऑकर टुगेदर। अब 16 है, उसके अंदर से टोटल आउटकम है, इधर या तो फिर मैं नेवर वाला देख लूँ या तो फिर मैं जब कॉन्जिक्यूएंटली आ रहे हैं ना, कॉन्जिक्यूटिवली वो कैलकुलेट कर लूँ। सो लेट अस सी हाउ यू कैन डू दिस। सिंपली मैं ले रहा हूँ हेड, तो मेरे पास बचेगा क्या? तो हियर इट कुड बी टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और हेड हो सकता है। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। नाउ अब मुझे बस ये वापस से दूसरा रखना है। आई वुड डू दिस एच दैट इज़ हेड, अगर मैं वापस कॉन्जिक्वेंटली ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो एच लिया है ना, सिंपल है कि इफ़ आई हैव टेकन ओवर हियर, तो मुझे यहाँ से 2 एलिमिनेट करने पड़ेंगे। कैसे? यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, एंड ओवर हियर हेड्स है। ठीक है, नाउ सी दिस, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी मुझे सेकंड पार्ट के अंदर नहीं लेंगे, तो निकल गया। नाउ आई हैव टू टेक इज हियर आई वुड टेक इधर, या तो फिर मैं टेल्स ले लूँ या तो टेल हेड ले लूँ। सो ये मैंने इग्नोर कर दिया दिस 2 एंड आई हैव टेकन दी अदर 2 पॉसिबिलिटी। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज जस्ट स्टॉप इट, गो अ लिटल बैक एंड रिवाइज इट। अब मुझे वापस से सेम चीज़ करनी है। मैंने हेड यहाँ पे लिया था, तो आई वुड टेक इट कॉन्सिक्वेंटली टू द लास्ट टाइम। अब मेरे पास ये 2 सिचुएशन बची। नाउ इग्नोर अगेन द 2 सिचुएशंस वेयर 2 हेड्स आर कमिंग कॉन्सिक्वेंटली, मतलब 2 सिचुएशन जहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है उसे इग्नोर कर दीजिए। तो वेयर इट कम्स, ठीक है। अब ये देखिए, हियर इट इज़ 2h, here it is 2h and here it is h. So just ignore these 2 possibilities और बाकी की 2 लिख दीजिए। What would be the 2 other? ठीक है, तो मेरे पास बचेंगे कौन से? हेड टेल बचेगी या तो फिर टेल बचेगी। सिंपल है। एंड हियर कम्स ऑल द पॉसिबिलिटी, आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी यू हैव रिटन, कि जहाँ पे दिस आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़ वेयर heads occur consecutively। ठीक है, अगर वो consecutively आ रहा है तो मेरे पास टोटल आउटकम है दैट इज 16, और ये कितने आउटकम हुए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आउटकम है, मैंने माइनस कर दिए। 8 आर द आउटकम्स। अब ये जो आउटकम है ना, दिस आर द आउटकम्स इन विच यहाँ पे नेवर ऑकर, सिंपल हेड नेवर ऑकर आ गया, तो आंसर वुड बी 8/16। ये नेवर वाला आ गया एंड हियर इज टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का सिंपल रूल, हमें जो पूछा गया है वो आउटकम एंड अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ़ नॉट जस्ट गो बैक एंड लिसन टू दिस प्रॉपरली। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट डज द क्वेश्चन से? क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ऑफ कोर्स वी ऑल नो, हमें पता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर स्मॉल हो सकता है बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? 0 और 1। इट इज़ 1। 0 से चालू हो रहा है तो होल नंबर होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। नाउ नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर कभी भी हो नहीं सकते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। नाउ अगेन दिस इज राइट। वाई? एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको आप 1/2 की फॉर्म में लिख सकें, दैट इज p/q की फॉर्म में लिख सकें। दिस आर रेशनल। इफ दिस आर रेशनल, तो आपके पास बचा हुआ क्या है? जो भी होगा वो रियल नंबर के पार्ट में आता है, मतलब रेशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये भी हो गया ट्रू। दिस इज ट्रू। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। नाउ आप जस्ट सोच के देखिए, यू हैव गॉट अ रूलर
आपके पास रूलर है ना, कॉमन सेंस, ये सब नहीं भी हो तो जस्ट इमेजिन दिस कॉमन सेंस. इन गुजराती वी कॉल इट एज साबू. ठीक है, सामान्य बुद्धि, साबू सामान्य बुद्धि. तो रूलर के ऊपर आपको पता है ऐसे मार्क्स होते हैं, बट इन बिटवीन हाउ डू यू राइट इस 1.1 1.2, दिस आर नॉट नेचुरल नंबर. तो अगेन ये भी एलिमिनेट हो गया. ए एंड सी, राइट ए एंड सी, सिंपल इजी. अभी तक देर इज़ नथिंग हार्ड एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन. अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं की है तो इट माइट कि आपको ये शायद ना आए, बट अदरवाइज ऑल आर जस्ट इजी पार्ट. द हाइट एंड रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इक्वल एंड इट्स वॉल्यूम इज, आपको वॉल्यूम दिया है 176 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया है दैट इज 176 अपॉन 7. नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है सिलेंडर के लिए, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, आपको अगेन ओवर हियर आर इज इक्वल्स टू एच दिया है. हियर इट इज हाइट एंड रेडियस ऑफ दिस आर इक्वल. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही आइडेंटिटी लिख दीजिए. पाई आर क्यूब लिख दिया मैंने. सो हियर इट इज़ योर सॉल्यूशन. अब 176 पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, आर क्यूब को ऐसे ही रहने देते हैं, एंड 176/7, 7 7 कैंसल्स आउट, 11 से 11 टू ज़ा, 11 1 ज़ा, 11 6 ज़ा, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/6/2. आर कम्स आउट टू बी, आर क्यूब्स कम्स आउट टू बी 8, देयरफॉर आर विल बी आपका 2 आएगा. ठीक है, अब ये आर आया है आपका 2, तो डायामीटर कितना होगा. डायामीटर यहाँ पे ब्लफ मत करना, बिकॉज आपको पूछा गया है डायामीटर, अदरवाइज एवरीबडी वुड हैव मार्क 2. ठीक है, तो इसका आंसर आपका बनेगा डायामीटर का 2 × 2 दैट इज 4. ओके, आगे बढ़ते हैं. अ पर्सन buys 2 watches for a total sum of 1000. He sells one watch as 5% loss and another at a gain of 20%, and the whole transaction 50 रुपीज़ हो रहा है. सो इसे आप दो तरह से कर सकते हैं. आई विल शो यू हाउ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. इट इज़ सिंपल, आप एलिगेशन लगा दीजिए. ऑप्शन से भी हो सकता है, पर आई गेस एलिगेशन इट इज़ सिंपली यू कैन डू इट. 5% हमने फर्स्ट का लिया है, लॉस था इसलिए नेगेटिव साइन रखा है. ठीक है, एंड सेकंड का वी हैव 20% प्रॉफिट. वी विल मार्क इट एज प्लस जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने मार्क किया है. नाउ यहाँ पे जो 50 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो 50 मिल रहा है ना, हियर इट इज़, ये जो 50 है ये प्रॉफिट है हमारा अपॉन कॉस्ट प्राइस. हमें टोटल सम तो दिया है, सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस. अब इसका हम निकालेंगे तो इट वुड बी 5%. तो ये तो प्रॉफिट था, हमने 5% लिखा एंड वी आर कैलकुलेटिंग. सो व्हाट विल बी, यहाँ से ये माइनस होगा तो दिस कम्स आउट टू बी 15% एंड दिस कम्स आउट टू बी 10%, क्योंकि यहाँ पे -5 दैट वुड बी दिस. नाउ दिस आर इन द रेशियोज, तो 3:2 में लिख सकता हूँ. नाउ अब ये दो रेशियोज जो हैं, हमेशा याद रखना एलिगेशन के अंदर जो बेस होता है वो बहुत मैटर करता है. बेस मैटर्स, दिस इज़ द रूल फॉर एलिगेशन. ये हमें कॉस्ट प्राइस बता रहा है. सो टोटल दैट इज़ 3 + 2 इज़ 5K. ये K कहाँ से आया सर K इज़ जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, ताकि आपको ऐसे K का जो वैल्यू ढूंढना है, मतलब सिंपली यू कैन डू इट एज 1000 अपॉन 5, यू विल गेट 200 एंड आपको दोनों की प्राइस मिल जाएगी. दैट वुड बी 3 × 200 and 200 × 2, that is 600 is to 400. ठीक है, हियर यू गो, आपका ये भी सॉल्व हो गया. आगे बढ़ते हैं. रमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days. अगेन वेरी इजी. Raman can do a piece of work. I will mark it over here. Raman can do a piece of work in 16 days. Satish can do a same work in 8 days. मैंने लिखा Satish can do the same work in
8 days. And Ashok can do the same work in 32 days. Here it is Ashok. All of them work together when they started, but Satish left 2 days after. ठीक है, सो यहाँ पे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ये दिस इज 32, this comes out to be 2, this comes out to be 3, and this comes out to be 1. So the whole comes out to be 7. अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये बहुत सिंपल सी एक चीज़ बता दे रहा है आपको कि 2 दिन, मतलब इफ़ दिस इज़ द वर्क लाइन, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो अगर ये स्टार्टिंग डे है डे, तो यहाँ पे 2 दिन तो काम हुआ है, मतलब दिस 2 days दोनों सब ने काम किया है सतीश के जाने से पहले. सो ये 2 दिन 7 की स्पीड से काम हुआ है, दैट इज 7 चेयर्स बनी है सामान लीजिए. तो 14 यहाँ पे काम हो गया है. व्हाट इज द रिमेनिंग कितना है? 32 माइनस 14, सो 18 आ गया आपका, यहाँ से 18 आ गया. नाउ सेकंड आगे बढ़ते हैं. रमन लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क. नाउ इसको बोला है कि 3 days यहाँ से छोड़ दीजिए, 3 days. तो ये किसने काम किया होगा? अगर रमन नहीं है, सतीश नहीं है, तो किसने काम किया है? सॉरी, रमन नहीं है और सतीश नहीं है. हाँ ओके, रमन और सतीश नहीं है, तो 3 days सिर्फ अशोक ने काम किया है. अशोक का है 1, सो 1 इंटू 3, क्योंकि 3 दिन एक की एफिशिएंसी से काम किया है, तो 3 यहाँ से आ गया. सो 3 दिन अशोक ने काम किया था 1 की स्पीड से, दिस इज अशोक. और यहाँ पे हमारा 3 आ गया. हमने क्या किया? 18 माइनस 3, दैट इज 15 इज द रिमेनिंग. ठीक है, ये आ गया रिमेनिंग. तो अब ये रिमेनिंग वर्क जो भी है वो मिलके कौन कर रहा होगा? अशोक एंड रमन. दिस इज अशोक एंड रमन. 3 से हियर कम्स आउट टू बी 5 days. तो इसका टोटल आंसर कितना हुआ? 2 दिन यहाँ पे प्लस 3 दिन यहाँ पे प्लस 5 days यहाँ पे, टोटल 10 days. ठीक है, हियर इट इज योर आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स beeps every 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour and 1.45 minutes. ठीक है, अगेन वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ LCM बोल दीजिए. तो मैं सबको पहले मिनट के अंदर कर दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्म. तो दिस इज 30 मिनट, दिस इज 60 मिनट, दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 90, this is 60 plus 45, 105. So 90 and 105. ठीक है. Now आपको सिंपली LCM लेना आता है. जस्ट टेक इट LCM. 5 6 21, 3 ले लेते हैं, 3 2 4 6 एंड 7. 3 कंटिन्यू भी कर सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, जो भी करना हो. सो तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2 3 एंड 7. अब ये प्राइम नंबर बचे हैं, तो यू कैन टेक इट. ठीक है, तो यहाँ से आपका इतना सॉल्व हो गया. सो व्हाट इज द आंसर यहाँ पे? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. इसका आपका मिलेगा 1260. व्हाट इज इट? जस्ट अ मिनट गाइस. आपका 5 इंटू 6 होगा, 5 इंटू 6 इंटू 4, सॉरी, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. हाँ, 1260. नाउ अब ये 1260 जो आ रहा है, वी हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय 60, क्योंकि हमें आवर्स में आंसर चाहिए. सो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 60 से, तो 21 आ रहा है. अब ये 21 जो आ रहा है, इट इज़ सिंपल. आपको यहाँ से 12 नून दिया गया है ना, 12 नून. अगर मैं यहाँ पे 21 मेरा है, तो अगर मैं 12 घंटे और करूँ तो 12 वापस बच जाएंगे दोपहर के. एंड
अगेन इसके अंदर मेरे पास रिमेनिंग 9 बचेगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 12 के बाद 9 है, सो इट वुड बी सिंपली आपका 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हियर इट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय 20% आर एथलीट्स, नवोदय के अंदर इतना है। उज्जैन दैट इज देर आर 2 स्कूल्स। ठीक है, नवोदय बताया गया है यहाँ पे और केंद्रीय विद्यालय बताया गया है। सो दिस इज नवोदय विद्यालय एंड देन केंद्रीय विद्यालय। तो व्हाट दे हैव सेड कि केंद्रीय विद्यालय उज्जैन के अंदर 20% ऑफ स्टूडेंट आर एथलीट एंड इन नवोदय उज्जैन 25%। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 20 है। सी आप है ना यहाँ पे कोई भी एज्यूम करके भी कर सकते हैं कि मैं एक रेलेवेंट नंबर ले लूँ जो 20% और इससे डिवाइड हो रहा हो, तो वो भी ये हो जाएगा। एंड हाउ मच 60% मोर है, तो मुझे क्या करना होगा, 60% मोर देन केंद्रीय विद्यालय दैट इज नवोदय विद्यालय और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय है 60% मोर स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होंगे वो 60% मोर होने चाहिए। ठीक है, देन केंद्रीय विद्यालय। तो मैं सिंपली एक चीज़ कर सकता हूँ ना कि मुझे अगर पता है कि नवोदय विद्यालय में 60% ज़्यादा है, तो अगर मैं इसे 100 ले लूँ तो ये 60% ज़्यादा है तो ये 160 होने चाहिए। दैट्स इट। और इसके अंदर यू हैव टोल्ड केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में से कि नवोदय केंद्रीय विद्यालय के अंदर 20% स्टूडेंट हैं, दैट इज़ केंद्रीय विद्यालय के अंदर 20% स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 20 ही आएगा और यहाँ पे 25, तो 160 का 1/4, तो यहाँ पे आपको 160/1/4 है, तो यहाँ पे 40 मिल गया एंड दिस वुड बी इतने ज़्यादा है, आपको इतना ही पूछा गया है, सो यू डोंट हैव टू मेक मच ऑफ अ ट्रबल। ठीक है, अब ये 40 ये 60 अब ये मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 20 हो रहा है, तो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे अगर इतना बढ़ रहा है तो दिस इज़ व्हाट परसेंटेज। सिंपल, आपको डबल हो रहा है क्योंकि नंबर इज इटसेल्फ 100%, मतलब एक नंबर होता है वो खुद का ही 100% होता है, तो ये डबल हो रहा है, तो व्हाट इट इज़ 200%। सिंपल, हियर इट इज़ योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 32 रुपीज़, अब अगेन जस्ट लुक एट इट, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस इज ₹320। अब आपको कॉस्ट प्राइस दे दी है तो आप मार्क प्राइस ढूंढ सकते हैं। वॉट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव मेड इफ ही हैड सोल्ड द आइटम एट अ मार्क्ड प्राइस, अगर मार्क प्राइस पे बेचता तो कितना मिलता। नाउ लुक, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है और इसके अंदर बोला गया शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब बेचने पे 15% आ रहा है, उतना ही है ना। सिंपल, अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 15% दे रहा हूँ, 15% दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 368 होगा। अब इसके अंदर आपको ऑलरेडी दिया है ना, मार्क प्राइस के अंदर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तभी मैं सेल कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करता तो दिस वुड बी डिस्काउंट। मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे मार्क प्राइस कितनी मिलेगी, हमें दिया गया है 368 + 32, यहाँ पे 400 डायरेक्ट आ गया आपका। सो हाउ मच दिस इज़ मोर देन दिस, अगर मैं मार्क प्राइस पे ही बेचता तो कितना ज़्यादा आता। तो सिंपल है कि मैं मार्क प्राइस पे बेच रहा हूँ तो मुझे 80 रुपये मिल रहा है, 320 का मुझे कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी इन द क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे से आपको मिल गया 25%। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान देना, दिस वुड बी अ बिट ऑफ अ ट्रबल, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से आपका आंसर चेंज हो सकता था, बट सीमेट है तो जो प्रॉपर आंसर बन रहा है वी वुड कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं दिस ए का वैल्यू 5 ले लूँ, एज्यूम कर लूँ, तो ये 5 वहाँ जाएगा, मतलब ए का वैल्यू आ गया 5, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या है, b + 1/c - 9। यहाँ पे मैं अगर 5 लेके जा रहा हूँ माइनस में तो दिस कम्स आउट टू बी 5,
अगेन यहाँ पे ये एलसीएम लोगे 25, 4/5 बचेगा। ओके, अब ये 4/5 इसका वैल्यू है। अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे 1/b प्लस 1/c माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, ठीक है, तो आपका इतना आ गया। नाउ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/c माइनस 9 विल बी 5/4। अब मैं ये 5/4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4। सो यहाँ पे मेरे पास जो ये b को लिया गया है दैट इज़ 1, और फिर जो भी मेरे पास बचा है ये 1/4 का जो भी रेशियो बचेगा दैट वुड बी c। नाउ इसके अंदर आपका टोटल जो बन, सो सिंपली c/9 आपका बचा है 1/c/9, और ये 1/4 आ गया। एंड आपका यहाँ से बचेगा c इज इक्वल्स टू 13। c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, एंड a की वैल्यू हमने 5, हियर इट इज़। नाउ ये 5 लेने का इन द सेंस जो मतलब बनता है 5 आई हैव टेकन 5 ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे जो 29/5 है ना उसे मिक्स नंबर में आप कैसे लिखोगे। सो सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, कैंसल आउट करोगे तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे आपका बचेगा 5, 4/5 सिंपल। दैट्स वाई ये ए को एलिमिनेट करने के लिए 5 लिया था। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर एंड 3 स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या दिया गया है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा ये सॉल्व करने में। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। आपको बोला है द एरिया ऑफ 3 फिगर आर डिफरेंट। अब एरिया ढूंढने का सिंपल है, हमने जो पहला ए पार्ट देखना है वो देखते हैं। एरिया, यहाँ पे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और यहाँ पे ट्रायंगल है। रेक्टेंगल का एरिया 36, स्क्वायर का एरिया 36, ट्रायंगल का एरिया 36। सो पहला रेलिवेंट है, करेक्ट। ठीक है, द एरिया ऑफ द 3 फिगर आर इक्वल, नहीं, द एरियाज ऑफ 3 फिगर आर डिफरेंट। सॉरी आई, मैंने करेक्ट रीड नहीं किया, डिफरेंट नहीं है। सो दिस कम्स आउट टू बी रॉन्ग, दिस कम्स आउट टू बी टी ऑटोमेटिकली। द पेरीमीटर ऑफ 3 फिगर आर इक्वल, पेरीमीटर इक्वल है, लेट अस चेक ऑप्शन सी। पेरीमीटर का बोला है तो 9 इंटू 2 दैट इज 18 प्लस 8, ये आपका रेक्टेंगल का आ गया। फिर मेरे पास स्क्वायर है तो 6 इंटू 4, एंड यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ दिस, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस लेना होगा। 9 और 8 है तो 81 प्लस 64, 5, 8 प्लस 6। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे 6 प्लस 4 14, फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे। सो यहाँ पे से डायरेक्टली पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आपका जो भी है 1 इज़ ओनली करेक्ट, दिस इज़ ओनली करेक्ट 1। ठीक है, लेट्स गेट अहेड। सुधीर परचेज अ चेयर विथ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। नाउ इसका बहुत सिंपल है कि इधर या तो फिर आप 2 ले लीजिए, मतलब ये दोनों का पैर लीजिए, फिर इसका जो आंसर आए उसका आप थर्ड के साथ कीजिए, दैट इज़ 5 के साथ। पर आई प्रीफर गोइंग लाइक, अगर दिस इज़ 100 तो यहाँ पे मैंने 20% डिस्काउंट दिया है तो चीज़ 80 में गई है। नाउ अगेन इफ़ इट इज़ 100 तो आपको 12.5 जो डिस्काउंट देना है वो 100 पे दोगे। जस्ट सिंपली करेक्ट कर लो, माइनस कर लो वहाँ से, आपको मिल जाएगा 87.5। अगेन आपको 5% जाना है तो 95। आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो 20% का आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 था, 1/5 होता है, 4 में बेचा, पर ये इसकी वजह से डेसिमल आ रहा है। अगेन अगर आपको ये डेसिमल का नहीं पता है कि 1/8 होता तो 8 to 7 में जा रहा है, एंड 5% इज 20 to 19। अगेन यू कैन डू दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आएगा, और यू कैन इवेंचुअली यू विल गेट दिस, आपको यहाँ से यही मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर
कितना बड़ा है, मतलब यहाँ से कितना बड़ा है। सो ये 335000 बड़ा है। सिंपल, यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल गया। कितना है देख के, 33.5। इससे देख के आप आंसर लगा सकते हैं। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, इवेंचुअली यू विल गेट दिस ओनली। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है एंड यू आर डूइंग दिस लाइक आई डिड, अगर आपने ऐसा किया है पेपर में, सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, नाउ अगेन आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब हाउ डज आई डिड दिस क्वेश्चन, मुझे मतलब √5 का वैल्यू पता है। लाइक √5 आपका जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली, आपको अगर 4 पता है ना कि 4 का रूट होता है 2, सो 5 वुड बी अ लिटल मोर। इतना तो माइंड में आता है आपका कि 4 का रूट इतना हो रहा है, सो 5 वुड बी अ लिटल मोर। मतलब मान लीजिए आपका जो भी है वो अप्रॉक्स जो वैल्यू आपके माइंड के अंदर आ रहा है वो लिख सकते हैं। मतलब दिस वुड बी 4.25। हाउ मतलब ये कैसे आ रहा होगा कि 5 है, तो सिंपली आप इसका स्क्वायर लीजिए और उसके बीच का वैल्यू डिनोट कर दीजिए। दिस वुड अप्रॉक्सीमेटली 4.24 आ रहा होगा। अब नाउ ये जो वैल्यू है बचा हुआ, उसके अंदर सॉरी, हाउ कम दिस, सिंपल है कि मुझे √5 का वैल्यू पता है। तो मुझे अगर √5 का वैल्यू पता है कि 2.23 हो रहा है, एंड इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस ना, तो जस्ट माइंड के अंदर थोड़ा सा रखिए कि जो भी वैल्यू होगा, अगर मैं 4 का रूट लेता तो इट वुड बी 2, तो 5 का थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 2.23 प्लस 2 मुझे करना है इसके अंदर, सो दिस कम्स आउट टू बी 4.23। नाउ इसके अंदर मुझे माइनस करना था 2.23 माइनस 2, तो दिस कम्स आउट टू बी सॉरी 0.23। एंड यहाँ पे मुझे √5 का प्लस करना था, तो 2.23 प्लस 1, तो दिस कम्स आउट टू बी दिस। अब मुझे सिंपली यहाँ से प्लस, यहाँ पे इसका रूट 0.23 एंड इसका रूट दैट इज 3.23। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सिंपली जो ये इक्वेशन बना है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। हाउ, अब आपको ये वैल्यू नहीं पता कि सर ये कितनी आएगी, सो जस्ट आप कितना कर सकते हो, 4 है, अगर सॉरी ये 4 पॉइंट समथिंग है बराबर। अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेता तो ये 4 होता, तो मैं अगर 2.1 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो ये 4.41। ये दिस इज रिलेटिवली क्लोज, दिस इज रिलेटिवली क्लोज, तो मैंने इसका ले लिया 2.05। ठीक है, थोड़ा सा कम कर दिया, सो आई एम गेटिंग दिस अप्रॉक्स वैल्यू अप्रॉक्स। अब मैं ये ले रहा हूँ 0.24, अब 1 का लेता तो इट वुड हैव गेट अ लिटल मोर। ठीक है, सो इसका मैं ऑलमोस्ट 0.5 ले लूँ चलेगा, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, और फिर मेरा ये बचा दिस इज 3.23। अब ये 3.23 मतलब 1.18 का स्क्वायर करता तो मुझे 324 मिलता है। सो दिस इज 1.8, सो मेरा यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 2.55 होल अपॉन 1.8, और इसको आप डिवाइड करते तो 255, दिस वुड बी 18, यहाँ पे 1 रखता तो, एंड दिस कम्स आउट टू बी 75, मतलब पॉइंट ऑलमोस्ट 1.4, सॉरी ऑप्शंस गलत दे दिए हैं मैंने। सो दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली √2 का वैल्यू होता है ना 1.41, एंड दिस इज योर आंसर। सो दिस वॉज ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड नेवर गिव अप। ठीक है, सो सी यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।